Now I'm going to invite my colleague and one of the youngest team members that we have in Periphery with us. We have Prince. Prince works in the Revive and the Pune team in Pune, sorry, and he will be sharing some of his experiences as well. So a very warm welcome to you, Prince. थैंक यू नीलम। थैंक यू मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम प्रिंस है और मेरा प्रोनाउंस ही है मैं। और आउट और प्राउड में ट्रांसमैन हूँ और फेरी फेरी में करंटली वर्क कर रहा हूँ रिवाइव और सोर्सिंग टीम में। Thank you, Prince. I do want to share something, and again, आज हमारे साथ और दो लोग आने वाले थे. We were expecting to have two more people, candidates, join us who were to share their experience today. Unfortunately, they couldn't join as they did not get the permission from the organization to represent themselves over here. Uh, what I want to call out is that this is not a battle between the community and the corporate. This is not a I am community and I'm an activist and you're corporate, so you're elite. It is none of that, right? We're collectively fighting for something which is so important for all of us. And what we're also trying to say is that, even Periphery as an organization, we're in the social sector, we're working with and for the community, even we get negative feedback. Even we get feedback every other day from our candidates because we have two infrastructures where people stay, they access our service. So it's very, very normal that anybody who is accessing your service will most likely have complaints as well. Customer complaints is the most normal part of any organization. So we'd love to see organizations embrace it, saying, you know what, it's okay, we learned from it, and rather not stop the individual from sharing those, because those individuals today would have shared so many of their positive experiences as well, and not just a few negative experiences. And again, this is not to bash any organization, but to rather say that we could learn from other organizations failures, challenges that they have made. And while the intentions are great, I don't think we have anything to be scared of. But nevertheless, we have our own colleague from the team who will be sharing his experience. So thank you, Prince, आपने इसके लिए आज टाइम निकाला. आपका पेरिफेरी में ज्वाइन करने से पहले यू हैव वर्कड इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. काफ़ी एक छोटी सी जगह पे आपने काम किया था. आप उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? 12th के बाद मैंने मेरा एजुकेशन कुछ कारण की वजह से कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं कोल्हापुर में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे स्कूल, कॉलेज में यूनिफ़ॉर्म को लेके बहुत मैंडेटरी है। तो वहाँ पे कॉलेज स्कूल टाइम में मैंने ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन कॉलेज टाइम में मेरे को वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। कॉलेज टाइम में मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज नहीं थे, तो उसके वजह से एज़ अ फीमेल करके मेरे को ट्रीट किया जाता था। फीमेल के ड्रेस पहन के आना ये मैंडेटरी किया था, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, तो मैं 12th तक कैसा जैसा-तैसा कॉलेज किया, उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। और उसके बाद 1 साल मैंने गैप करके अभी सोचा कि ट्रांज़िशन करना है, खुद का स्टैंड खुद को लेना है। तो मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। तो एक मेट्रो हाईटेक करके टेक्सटाइल लाइन है, उसमें मैंने जॉब करना स्टार्ट किया एज़ अ वर्कर। वहाँ पे बस जो प्रोडक्ट बनता था उसका पैकिंग करने का। शुरुआत में मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि डॉक्यूमेंट चेंज नहीं थे। आइडेंटिटी कुछ ये नहीं थी। आइडेंटिटी का इश्यू था क्योंकि एक छोटा-सा गाँव था, छोटी-सी फैक्ट्री थी। तो मेरे को बस कमाना था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जॉइन किया। एज़ अ फीमेल वर्क करता रहा। 1 साल गया, 1.5 साल गया। तो मेरे वहाँ पे कलीग्स बन गए। सबके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर वगैरह चले गए। तो मैं ट्रांस पर्सन जो मेरे फ्रेंड है, उनके साथ में फ़ोटो डालता था या उनके साथ वीडियो वगैरह शेयर करता था। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलीग, मेरे फ्रेंड्स वर्क प्लेस के पूछते थे, "तू क्यों इन लोगों के साथ रहता है? ये लोग अच्छे नहीं रहते हैं।" तो मेरे माइंड में भी वो डर रहता था कि बाबा इनको मैं मेरे बारे में बताऊँगा, तो मेरे को कंपनी से निकाला जाएगा या ये मेरे लिए मतलब मेरे से उनका बॉन्डिंग अच्छा था, तो मेरे को ये डर था कि मेरे से इनकी ये हो जाएगी, तो मेरी आइडेंटिटी छुपा रहा था। लेकिन
1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो मैं ही फ्रस्ट्रेट हो गया और एक इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी अपलोड हो गई थी, तो मेरे पूरे कंपनी को जो मेरे कलीग्स थे, वो थे, उनको सबको शेयर कर दिया क्योंकि मेरा स्टैंड मेरे को लेना था। तो मैंने बोला कि जो होगा सो देखा जाएगा। तो दूसरे दिन मेरे को मालूम था कि कंपनी में अभी कुछ तो होने वाला है। दूसरे दिन ही मेरे को मेरे जनरल मैनेजर ने बुला लिया और बोला कि आपने ये क्या भेजा है मुझे? तो मैंने बोला हाँ, जो है वो मैंने भेजा है आपको। तो मेरे को उन्होंने बोला ठीक है, हम इवनिंग में बात करते हैं। तो इवनिंग में उन्होंने मुझे बुला लिया और मुझे बोला कि आपके जेंडर को लेके मेरे को कोई इश्यू नहीं है। इश्यू आपको होंगे क्योंकि आप अभी ओपन हुए हो, तो आप उन इश्यू को हैंडल कर पाओगे क्या? तो मैंने बोला कि आज ना कल मेरे को ये करना ही है। बस आपके साथ मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। तो वो बोले कि आपके जेंडर को लेकर यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा। तो तब से उन्होंने मुझे मतलब मैंने एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता था उसलिए कम्युनिटी के बारे में उधर इतना नॉलेज नहीं है। तो मैंने आहिस्ते-आहिस्ते ऐसा नहीं हुआ कि फटाक से उन्होंने एक्सेप्ट किया या मेरे को ये किया। लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते उनको मैंने चीज़ें समझाता गया तो उन्होंने आहिस्ते-आहिस्ते मेरे को समझा लिया। तो उस कंपनी में मैंने 5 साल वर्क किया, उसके बाद भी, लेकिन कुछ इश्यू थे जो वो मेरे को लास्ट तक फेस करने ही पड़े। लास्ट में बस उन्होंने मेरे को एक दिया कि जो मेरा एक्सपीरियंस लेटर था वो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये मेरे डेड नाम नेम से मत दीजिए, मेरे को ये फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होगा। तो जो मेरा प्रोनाउंस नेम है उससे दोगे तो आप मेरे को बेनिफिट होगा। तो उन्होंने वो एक मेरे को हेल्प की कि उन्होंने मेरा जो प्रिंस नेम है उससे मेरे को वो उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर दिया। लेकिन लास्ट तक मेरे को फीमेल वॉशरूम यूज़ करना या फील्ड में वर्क करता था तो कुछ मशीन बंद पड़े या ये कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मशीन के अंदर जाना पड़ता था। तो वहाँ पे मेरे को लोग अलग नज़रिए से देखते थे कि बाबा ये कौन है? लड़का है या लड़की है? तो मेरे को वहाँ पे गिल्ट फील होता था और कुछ मेरे पुराने लोग थे जिनके मेरे मेरे बारे में आइडेंटिटी पता थी, लेकिन जो नए थे क्योंकि मैंने मेरे पिछले कंपनी में एचआरटी लेना ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुका था, तो मेरा वॉइस चेंज वगैरह वहाँ पे हो गया था। जो नए वर्कर्स थे उनको मेरे बारे में पता नहीं था क्योंकि मेरे मेरे कलीग्स वगैरह बता दिया था कि मेरी आइडेंटिटी आप ओपन मत करो। उन्होंने ये किया था कि मेरी आइडेंटिटी वो ओपन नहीं करते थे। कोई कंपनी में गेस्ट वगैरह आता था तो एज़ अ प्रिंस करके ही मेरे को वो ये करते थे। लेकिन लास्ट तक जो वॉशरूम में छुप-छुप के जाना क्योंकि मेरे को डर था कि कोई देखे तो मेरी आइडेंटिटी समझ जाएगी, तो मेरे को फीमेल वॉशरूम में छुप के जाना पड़ता था। तो उससे मैं तंग आ के बोला कि ये अभी इधर ही मेरे को रुकना चाहिए। तो फेरी-फेरी का मैंने दिसंबर में फर्स्ट बैच में पुणे का ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं अभी फेरी-फेरी के साथ वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू प्रिंस फॉर शेयरिंग दैट। काफ़ी विस्तार से आपने आपकी जर्नी हमसे शेयर की है एंड इट टेक्स अ लॉट to go back, relive, and share that. Um, for Prince and a lot of our other candidates are also on this call, so we're continuing this conversation in Hindi for a little bit. Prince, आपके लिए एक final question. आपके हिसाब से colleagues या आपके जो managers हैं वो क्या कर सकते थे जिससे आपका environment और experience और भी better हो सकता था? और ये सिर्फ आपके perspective से भी नहीं, आपने अभी तक काफ़ी candidates के साथ काम किया है, आप हमारे clients से भी मिलते हैं। According to you, larger community की need क्या है, especially in a plant or a site? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो कंपनी में थे, सब लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ लोग बुरा-भला बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये होता है। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो वहाँ पे मुझे लगता था कि जो जनरल मैनेजर थे, वो मेरे तक थे। वो उन्होंने मुझे क्या बोला था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरे तरफ है। लेकिन उन्होंने सेंसिटाइज़ नहीं किया किसी को। वो सेंसिटाइज़ कर सकते थे, उन्होंने सेंसिटाइज़ नहीं किया या मेरे को जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम वो मेरे लिए कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस चाहिए, दूसरा जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम चाहिए और
एक तो बहुत बड़ा है कि सब अभी कंपनियों में एक ही ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। ये एजुकेशन का बैरियर थोड़ा-सा साइड में रख के कैंडिडेट जो स्किल और उनका प्रोग्रेस है, उनको देखना चाहिए। क्योंकि हमें बचपन से ही सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मेरे को अभी बहुत एहसास होता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है, लेकिन मैं अभी परसुइंग कर रहा हूँ ग्रेजुएशन, बट ये टाइम गया है मेरा। तो मुझे लगता है कि किसी का तो सपोर्ट मिलेगा तो मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। तो लगता है मुझे कि 12th और 12th वालों जो कैंडिडेट हैं, उनका इंटरव्यू लेना चाहिए और उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। Thank you, क्योंकि friends. स्किल देखिए अभी मेरे को एजुकेशन साइड में रख के स्किल पे थोड़ा ध्यान दे के उनको हायर करना चाहिए ऐसा लगता है। क्योंकि वो जो सिटी में कैंडिडेट है, जो विलेज से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है। बहुत मतलब बहुत दिक्कत है। क्योंकि वो बीच में ही एजुकेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि विलेज में इतना कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। मेरे गाँव में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। मैं अभी आउट हूँ क्योंकि मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनको कुछ लोगों का अलग-अलग सोच है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि अगर आप एक कंपनी जॉइन करते हैं तो आप क्या देखेंगे उस कंपनी में? आपको क्या चाहिए रहेगा? आप किस हिसाब से वो कंपनी जॉइन करेंगे? मैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए जो एक्सेप्टेंस देखूँगा कि लोगों का हमारे तरफ का एक्सेप्टेंस कैसा है अ, और फैसिलिटी कैसी है ट्रांस पर्सन को लेके क्योंकि हमने हमारा जो राह चुना है उसमें बहुत सारा सर्जरी एंड मेडिकल इशू का बहुत ही है, तो मेडिकल इशू कैसा है इस पे ध्यान दिया दूँगा मैं और वर्क प्लेस अवेयरनेस कैसा है इस पे ध्यान दूँगा। थैंक यू। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि नॉट एवरीबडी इज आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन। हुँ। सो आई नो प्रिंस इज आउट एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रांस मैन। बट हमारी टीम में और हर जगह, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी पॉपुलेशन हाँ, हैज पीपल। यस, आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? मैंने अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनका मैंने फीडबैक लिया है, ये कैंडिडेट है कि कुछ कंपनियाँ हायर करते हैं, लेकिन वो उनको बिना बताए पब्लिक करते हैं कि ये ट्रांस पर्सन है। तो इसका इफ़ेक्ट उन कैंडिडेट के ऊपर जिनको आपने हायर किया उन पे बहुत उसका इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि किन लोगों को होना होता है, किन लोगों को नहीं होना होता है। ये हर लोगों की सोच अलग है, तो उसका अलग इफ़ेक्ट होता है। तो इसके बिल्कुल। बारे में सोचना चाहिए कि मतलब हर किसी की पर्सनल और जेंडर आइडेंटिटी को उसके हिसाब से ये करना चाहिए।